तो वहां जो प्रॉब्लम है वो दो है, एक उनका अकेलापन, दूसरा उनका अलगाव। शहरी जीवन की एक खूबी ये है कि अलग थलग हो गए हैं सब लोग। पहले अभी यहाँ देखिए इसके दो संदर्भ हैं, एक गांव एक शहर। तो गांव और ये जो समस्या है बुजुर्गों की, खासकर जो फैमिली में रहने की एम्प्टी नेस्ट वाली समस्या तो शहर की है, लेकिन ये जो फैमिली में ही लॉस ऑफ डिग्निटी है वो खाली शहर की नहीं है, वो गांव की भी है। और जबकि हमारे ज्यादातर बुजुर्ग गांव में हैं, तो जब हम बुजुर्गों की सुरक्षा की बात करते हैं तो हम खाली शहरों पर ध्यान अपना केंद्रित हमने अभी तक जो बात की है उसमें हम शहर और एजुकेटेड क्लास पे ही सीमित रहे हैं। इसके ऊपर हम चर्चा जारी रखेंगे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लौटेंगे तो हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बुजुर्गों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कैसे किए जा सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं कि विदेशों में यह मामला कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। हरजाप सिंह औजला जो एक NRI हैं, हमसे बात करेंगे। अमरीका दे विच सीनियर सिटीजन जिन्ना सेफ है, इन्ना मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड की किसी कंट्री सेफ है। उन्होंने दे वास्ते एक असिस्टेड लिविंग सेंटर्स बने हुए ने। मैं सोच करो 500 बंदा जिहड़ा वो असिस्टेड लिविंग रहना चाहता एज ए सीनियर सिटीजन, ये ठीक है, खर्चा उन्होंने अपनी जेबों देना पैंदा, लेकिन सिक्योरिटी बहुत है। वो जिन्नी लिविंग अकोमोडेशन है उन्होंने 400-500 यूनिट्स, वो सारे दे सारे यूनिट जिहड़े ने उन्हां दे विच स्पैशल अलार्म सिस्टम भी लगे हुंदे ने। उस एरिए विच बेगानी कार नहीं वड़ सकती, बेगाना बंदा इंटरूड नहीं कर सकता। पुलिस की पेट्रोलिंग ज़्यादा ते खास भी उत्थे अलार्म लगे हुए हैं कि तुसी अलार्म हो बज जाए तो विदिन 5 मिनट्स 2 मिनट्स पुलिस ने उत्थे पहुंचना ही पहुंचना। हरजाप औजला जी की बात पे हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका क्या नाम है? मैं चंडीगढ़ तो बोल रही हूँ जी। हाँ जी फुल्लर। हाँ जी, ते मेरा सवाल तो नहीं है, सजेशन है। हाँ जी, तुसी बोलोगे? हाँ जी हाँ जी, सुन रहे हैं तुम्हारा आवाज। हाँ जी, वो ये है कि बनिस्बत के ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਦਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। हाँ जी, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਏਰੀਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ NGOs ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਅਡੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਆਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਫਿਸਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਜਾਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਦਾ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫॉर दैट ਮੈਟਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸਿਸਟਡ ਉਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸਿਸਟਡ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੋਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਪਿਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ 2-4 ਖੁੱਲੇ ਨੇ,
ਪਰ ਬੜੇ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਫਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਟਿਗਮਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਟ ਵੀ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 25-30 ਸਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਸਿਟੀ ਆਲਸੋ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ਿਫਟ ਆਊਟ, they shift out to their own houses। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਨੇਬਰਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਪ ਵੀ ਬੜਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬਈ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਲਾਰਮ ਬੈਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਬੈਲਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਲ ਵਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 25-30 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜੇ ਦੌੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ कि नेबरहुड रिलेशंस उन्होंने बनते ही नहीं ने, दोनों पासों ही कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता। प्रोफेसर शर्मा, हम जो सारी बात कर रहे हैं यहाँ पर भी और अदरवाइज भी, वो सारी एजुकेटेड जो एम्प्लॉइज हैं और एक शहर की लिविंग के साथ जोड़ के की थी, जबकि हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो तो बाकी इलाकों में भी रहते हैं। उन सभी का मुद्दा कैसे विचारा जा सकता है? उनकी मुख्य समस्या है जो जिस तरह के परिवर्तन आ जा रहे हैं और जिस तरह की नई सोच समाज में आ रही है, उसकी वजह से पहले वो जो एक स्टेटस और अथॉरिटी एंजॉय करते थे समाज में, परिवार के अंदर, आज वो नहीं, जो सामाजिक मूल्यों में जो आ रही तब्दीली है उसके कारण। बिल्कुल हमारी जो सामाजिक व्यवस्था रही पुरानी, उसमें बुजुर्गों को बुद्धिमान भी माना गया और ये माना गया कि इनको ज्यादा ज्ञान है और इसलिए इनका तजुर्बे को बहुत सारी अहमियत मिली, इनका आब आदर करना सही बात है। अब आधुनिकीकरण की वजह से हुआ क्या कि वो जो आपका कॉम्पिटेंस है बजाय एज के, अब आपके स्टेटस को डिटरमिन करने का फैक्टर बन गया आपकी कॉम्पिटेंस, कि आप कितने, आपको ज्यादा ज्ञान है, कितना आपको नई चीजों के बारे में पता है। तो उसकी वजह से डीलिंक हो गया, एज और स्टेटस डीलिंक हो गए। पहले हायर द एज हायर द स्टेटस, अब क्या है, नई ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में और डाइवर्सिफाइड ऑक्यूपेशनल सिस्टम में कॉम्पिटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। कम उम्र का बच्चा भी आपका बॉस हो सकता है, आप उसके अधीन हो सकते हैं। सर, इतनी डाइवर्स किस्म की पॉपुलेशन जिसमें लगातार जो हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल है चेंज हो रहा है, ये इशू कैसे चेंज हो रहा है पुलिस के लिए? नहीं, प्रोफेसर शर्मा ने जो बात कही वो बड़ी वैलिड बात है कि एक तरह का डिस्कनेक्ट हो गया बुजुर्गों के बीच में और नई बढ़ती हुई पीढ़ी के बीच में। मोहल्लेदारी थी पहले, ज्यादा एक सामाजिक मूल्य दूसरे तरीके के थे। इसमें हम लोगों ने एक बहुत बड़ी पहल की है, यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया है। कॉलेज के लड़के लड़कियों को हमने इसके साथ जोड़ा है अपने बीट सिस्टम के साथ। आपने अभी देखा होगा, हाल में अभी 2 हफ्ते से शुरू किया है कि हमारा बीट कांस्टेबल और 4-5 लड़के लड़कियां, एक तो पहले हमने उन बच्चों को अवेयर किया और उनको सेंसिटाइज किया कि बुजुर्गों, जो बात प्रोफेसर शर्मा ने कही कि बुजुर्गों का क्या महत्व है और उनसे हमें क्या हम सीख सकते हैं और क्यों उनकी केयर करनी बहुत जरूरी है। और फिर उनको हमने अपने लोगों के साथ हम घर घर भेज रहे हैं। आजकल हर घर में
और 3 4 5 बच्चे और पुलिस वाले जाते हैं, और वो कुछ तो हम लोग अपना डेटा कलेक्ट करते हैं जो अभी बात हो रही थी, और कुछ वो उनको सेंसिटाइज करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और साथ में खुद भी बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हो रहे हैं कि साहब हमारे बुजुर्ग हैं, यही हमारे रिपोजिटरी ऑफ ऑल नॉलेज हैं, तो हमको इनसे क्या मिल सकता है। आपकी बात बहुत दिलचस्प है, जो पुरानी जो ट्रेडिशन टूट रही है उसको आप नए ढंग से उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक चंडीगढ़ पुलिस का एक बहुत बड़ा प्रयास। हाँ जी, तुसी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इस डिस्कशन ਨੂੰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। हाँ जी, ਕਿ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਇਨਕੈਪੈਸਿਟੇਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ऑन द बेस ऑफ पेमेंट ऑन डिमांड टेलीफोन पे वो घर आते हैं। अगर किसी की मलहम पट्टी करनी है, बीपी चेक करना है, कोई इंजेक्शन लगाना, वट एवर इज रिक्वायर्ड, और पूरी मेडिकल केयर ऑन पेमेंट बेसिस फिक्स रेट्स पर होंगे एंड दे प्रोवाइड इट। मैं समझना कि अगर असी एस कंट्री जिसे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर असी शॉर्ट टर्म कोर्सेज स्टार्ट करके नर्सिंग दे, अगर एजिड केयर दे कोई यूनिट भावे सेमी गवर्नमेंट हो जाए, प्राइवेट हो जाए, और विच इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट, तो if we can provide them on the doorstep this facility, this will be a boon to those people, बड़ी बड़ी हेल्प होगी कि उन्हें हेल्प मिल जाएगी। हाँ जी। नंबर 2, बुजुर्गों वास्ते प्रॉब्लम आ गई है कि इंश्योरेंस कंपनियां उन्होंने कोई बीमा करने तैयार नहीं होंगी कि जी 60 तो बीमा नहीं करांगे। आई थिंक गवर्नमेंट को देखने की लोड़ है कि जो साड़ी एक एज स्पैन वध रहा है, दे शुड प्रोवाइड एक लो इंस्टॉलमेंट वाली किश्तां वालियां जिहड़ी हैगियां स्कीमां बुजुर्गों वास्ते जिहड़ी कि डिजाइन की हुई होण, सो दैट इन टाइम ऑफ नीड दे कैन हैव द बेनिफिट ऑफ दैट ऑल्सो। और तीसरी गल हैगी है कि हेल्थ केयर शुड बी ए फंडामेंटल राइट फॉर दी सीनियर सिटीजन्स। ये पार्लियामेंट को सोचना चाहिए कि असी अपने बुजुर्गों वास्ते हेल्थ केयर एक फंडामेंटल राइट बनाइए, और गवर्नमेंट शुड check out some schemes। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। श्रीवास्तव जी, आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगा कि इन सारे हालात में आप किस किस्म के इनिशिएटिव्स सीनियर सिटीजन्स के लिए पूरे समाज से एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, समाज तो अपने बुजुर्गों का केयर करे, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है, बहुत जरूरी भी है। लेकिन हमने चंडीगढ़ में, चूंकि ये एक मैनेजेबल, एक खूबसूरत, एक छोटी सी जगह है, हमने पुलिस को बहुत सेंसिटाइज किया है कि वो अपने सीनियर सिटीजन्स को किस तरह से लुक आफ्टर करे। और आज इस आपके माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी गैजेटरी अवेलेबल है, बहुत सस्ती, 200 रुपए की क्रॉसबेल से लेकर 50,000 रुपए तक के एंटी बर्गलर अलार्म, डायरेक्ट डायलर टू द पुलिस। हमारा पुलिस कंट्रोल रूम चंडीगढ़ का बहुत सक्षम है, 5 मिनट में कहीं भी पहुंच जाएगा, लेकिन उसको सूचना मिलने की जरूरत है। हाँ जी। तो मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि अगर वो इन चीजों को अपनाएं और साथ में एक दूसरे की केयर करें, तो तभी हम समाज को सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित कर सकते हैं। आप सभी इस बहस में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बुजुर्गों की सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा का बेहद अहम पहलू है, जिसे किसी भी हालात में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ कानून या पुलिस का मसला नहीं है, बल्कि इसके साथ सामाजिक मूल्यों और परिवार के ढांचे के सवाल भी जुड़े हुए हैं। इस मुद्दे का हल भले ही मुश्किल क्यों ना हो, इसे ज्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता। इसी के साथ ही हम आज का प्राइम डिबेट यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।